So, ladies and gentlemen, let's have a big round of applause for our honorable dignitaries on the dais. Namaskar. Good evening, everyone. A warm welcome to all the dignitaries, distinguished guests, experts, and participants to this special session on unlocking growth in the potato value chain with Netherlands experience. In this session, we strive to focus on innovation, knowledge sharing, value addition, and global linkages in the potato industry. सत्र की शुरुआत करते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री एच.एम. चावड़ा जी, निदेशक बागवानी विभाग गुजरात को स्वागत संबोधन के लिए पधारें. वेलकम सर. Good afternoon to everyone. Namaskar. It's give me immense pleasure to welcome you all to the Vibrant Gujarat Regional Conference 2025 organized here at Ganpat University, Kherwa. I, Director of Horticulture, on behalf of the Government of Gujarat, extend a warm and heartily welcome to all distinguished guests, delegates, participants joining us today for the seminar on the unlocking growth in the potato value chain with Netherlands experience. I take the opportunity to extend a cordial welcome to our esteemed guest, Mr. Simon Heck, Director General International Potato Center, Mr. Davinder Singh Dosanji, Chief Executive Officer, Mahindra HZPC, Mr. Hemant Gaurji, Director Siddhivinayak Agri, Mr. Haresh Karamchandani ji, Director Hyphen Food Private. Okay. Coming in the 5 minutes. Mr. C.M. Patel ji, Joint Director and Executive Director of Natural Farming. Your presence has truly graced this occasion and we are privileged to have you with us today. In this seminar, we discuss about the potato. In the Gujarat, potato is cultivated on more than 1.56 lakh hectare. Banaskantha is the major district, that is the 61,000 hectare, then Sabarkantha and then Aravalli. Three major districts contribute 76% of the potato area of the Gujarat. In Sabarkantha and Aravalli district, they are growing, processing potato varieties, and also there are 34 metric ton productivity per hectare. Gujarat is also home to several major potato processing industries such as the Meccan, Hyphen, Balaji, Atop, Ramdev, Simplot, Falcon, Maxi Foods. These industries promote contract farming to supply the processing variety like Lady Risotto, Locker, Centena, Gladiator, Innovator, FC and other varieties, strengthening their potato value chain from farm to fork. The Center of Excellence in India, established under the MIDH and supported by the Ministry of the Agriculture and Farmer Welfare, play a vital role in promoting the modern agriculture practices to enhance the productivity and farmer income. One such center of excellence for the potato and floriculture is currently being established at Chala village in the Gandhinagar district of the Gujarat. Several PUM experts are providing the technical support to the Center of Excellence under the ongoing Indo-Dutch collaboration between the Ministry of the Agriculture of the both countries. I am confident that today's seminar will offer valuable insights and help us explore a new opportunity for innovation, sustainability and value addition in the potato sector. Thank you all once again and welcome. Thank you. Thank you, sir, for your warm welcoming words.
And now, to set the tone and provide context for today's discussion, may I now invite Mr. Simon Heck, Director General, International Potato Center, to share his insights through his presentation. Welcome, sir. Thank you very much, and I will be very brief. I had a presentation a few minutes ago in the other auditorium. Not sure I need to come up again with the same one, but I think it's being projected almost automatically. So let me just talk through the slides rather than present them as such, and go to Gujarat, which is where we are. As we know and really appreciate, Gujarat is a success story when it comes to potato, right? It's kind of a perfect match of things coming together. The agroecology of Gujarat is very favorable to high quality processing, great potato production. We have the wonderful human resources, the entrepreneurship, and the capacity in the private sector to do agriculture, from production to processing to marketing and exports. We have government policies that are supportive, and we heard again this morning in the new economic plan, the Viksit Gujarat to 2047. Again, potato is featured along with other horticulture and agriculture commodities. So that's another great ingredient. And of course, from our side, from Peru, if I may say, we have the potato genetic resources that also played their part in that success story. Now, in as much as it is successful, we also know nothing is stable and successful forever without continued attention. And I think this is what we're here to discuss. You know, what have been the factors of success so far, and what are some of the risks that we now encounter. They may come from any of those ingredients I just mentioned. Certainly we know that the agroecology is changing, and that this poses challenges to the continued success of potato production. The temperatures, the seasonality is changing, and also the markets continue to evolve and to change. Processing technologies, consumer preferences, the economics of global international markets are changing. We need to adapt to that as well. Good enough, we have continued stability in government, and we have the continued presence of the private sector capacities. But how do we keep our, magic formula up to date so that success continues to be generated? Looking ahead, India, of course, wants to diversify its potato sector across many states. Gujarat is a bit of a role model for many other states because of this, being a pioneer, let's say, in processing and export. Other states want to emulate that. This may or may not be possible, but what I would also like to hear from the experience here in Gujarat, how do you safeguard your strategic advantage? How do you safeguard your competitiveness? Not just vis-a-vis other states in India, but globally, right? How do you become a global leader in potato industry and other horticulture industries? Just as I came over here, we had some presentations from other international partners like FAO, Wageningen University, IFC and World Bank. There is an expectation that Gujarat can step up as a global player, not just as a national leader. And potatoes surely is projected to continue to grow globally. With India now the second largest producer in the world, perhaps being the largest producer before long. It cannot happen without Gujarat continue to be successful. So this is what I would like to hear from our distinguished panelists. Very appropriately, it's the combination of the Department of Horticulture, we just heard from the director, and some of the leading companies. We have Mahindra, HZPC, SV Agri, and Haifan Foods. I think
very much and very appropriately representing this innovative and very competitive industry. So without occupying more time, do I hand back to you to introduce, I think, Mr. Davinder Singh as the first speaker. Thank you. Thank you so much, sir, for setting the tone and for your valuable inputs. Thank you. And ladies and gentlemen, a strong foundation through partnerships and technology can strengthen the base of the entire ecosystem. To enlighten us on the subject, I now invite Mr. Davinder Singh Dosanjh, CEO, Mahindra HZBC, for his presentation. Welcome, sir. Let's all have a big round of applause for our honorable speakers. A very good evening, respected Director Horticulture, other government officials, other specialists on the dais, and all the value chain players in the audience. So, while I work with Mahindra HZBC, but today I'll be presenting the parent group, which is HZBC Group. Most of you would, if you are dealing in potato and especially in Gujarat, in any form, I'm dead sure you would already know, you would have heard varieties of potatoes, and many of you would already be using them. So today I'll just introduce the face or the group behind those varieties. And the varieties I'm talking about are Columba, which is a most premium variety in table segment, Santana for French fries, Innovator for French fries, and Taurus for crisps. Anybody dealing in French fry industry, so HZBC as a group has more than 80% market share in India and China, and around 40% market share in Europe. So the group is broadly divided into two regions. One is, we call it EMENA, which is broadly Europe, and other one is global, which constitutes almost all the other world countries. And there are two brands, HZBC and STET. Till last week, this was a factual statement. Around last week, HZBC Group also acquired another company, Irish Potato, IPM Group from Ireland. So now here on HZBC Group would be represented by three brands in the market. So in terms of its focus area, there are three things this group is doing. Breeding, we are the market leader in the world, and then supply chain, or we call it seed sales, and then also as a market leader we are doing a lot of innovation on the concept development side. I'm happy to say that this company is very traditional. It's more than 125 years, and that's why 2 years back now it has started change its name by the Netherlands government. They have been accosted with the Royal HZBC Group. This is a few glances of the journey of 125 years. Our vision is development of responsible food for the world population, and that's what inspires the whole group. So the group employs around 400 people, 700 growers in Europe, and has more than 100 varieties, two main research locations, and around 100 export countries. And last year they did around, they crossed 1 million tons of seed production, and with a turnover of around 4,800 crores. This is just a broader representation of all the locations the group is working, and we are catering to almost all segments, which is fresh traditional, fresh retail, French fries, and crisps. So talking about the varieties, the focus of the research is, as Mr. Heck has pointed, the world is changing, the climate is changing, and more so in India also. You could see this year Punjab had floods,
And only last week, there were a lot of potato early crops being destroyed in UP and parts of Punjab. And Gujarat also last year had a very high temperatures at planting and harvesting. So things are changing. So one of the focus area for HZPC as a group is how do we mitigate this climate change risk by producing better varieties, more climate resilient varieties, more the new diseases or the disease which is limiting the yields of a farmer or productivity of farmer. How do we solve those problems by innovative techniques in breeding? This is our main research station where the breeding happens in Metselweer. It's around 1.5 hours from Amsterdam. HZPC as a group is applying all the breeding technique starting from the traditional as well as the innovative techniques which are true potato seed breeding and also the new generation technology. They have 4 breeding or selection stations world over. One main obviously is in Europe in Metselweer. Then one they had set up in collaboration with SIP in Vietnam, and then one in US, and the 4th one is in Africa. So this is a new technology which HZPC is working on, which is typically the clonal breeding. If you see how a new variety is bred, 2 parents are mated, and what you see in the center is a small true potato seed, and around 125,000 such seeds are put into growing chambers, and then a molecular marking is deployed, which helps elimination of all the non-viable germplasm, and that's how the selection continues to be improved and ultimately ends up as a new variety in our hands. And it's a very lengthy process. You can well imagine if there are around 1,000 crosses made, so this is how it takes almost 7-8 years to get one variety, and this is when we are already heavily deploying molecular marking as a selection technique in the early stages. And it's not that we are working alone. We are in active participation with SIP as well as Wageningen University to adopt the latest technologies available, which helps us to secure the future of potato in the world and hence the food security. This is a glimpse of some of the varieties which have been developed with SIP in Vietnam trials, and we have already imported 5 varieties in India. But potato is equal to patience. There's nothing which changes immediately. So bringing a variety, testing it, and commercializing it, it's kind of 10 years a program. So you would see in the coming 4-5 years there would be new varieties which will be in your hands to give you better productivity, less risk, better prosperity in terms of better incomes. This is one variety from SIP, which is Ralstonia tolerant, and also we were lacking a good variety for South India, where for the Kharif crop, and we feel this could be an answer to many such areas, requirement of such areas. Then there's another totally new technology which many good breeding companies are working on, which is deployed through hybrid true potato seeds. So HZPC also invested in this since 2011. So which is nothing, which is like growing potato from the seeds which are very similar to tomato seeds. You guys must be familiar with. So it's very similar. Only thing is a decade ago when we were trying these kind of things, due to heterogeneity there was no uniformity, but now with deployed hybrid, the scientists have come up with some possible answers on that side. And there are many advantages of this kind of seeds, because they are not perishable, they can be carried forward, the age could be 10 years, the logistics cost is hardly any. But
in India, it will take a couple of more years for this to be seen any success. This could be more relevant currently in Africa and maybe the eastern part of India, some hilly regions. So this is how from the TPS small plantlets are produced, which can be mechanically planted into the soil directly. This is an example of the first diploid hybrid, which is launched in Africa continent, and this is, you can see it's quite uniform, and the production is also reasonably good. Along with the breeding techniques with more functional values for the processors, for the consumer markets, for the value chains, another focus area for HZPC is how to have more resilient with respect to pathogens. Now these beautiful pictures here are actually a pain for all the potato growers. This is Fusarium, different strains of Fusarium, and HZPC is developing a technology around molecular markers, and by 26 hopefully that technology will be complete and deployed. Along with what I mentioned, breeding and selling the seeds, we are also doing a lot of innovation work. You can see some of those concepts are mentioned here. We can see the colorful potatoes, we call them Perupas, or there are fries, Leon and Leon, which has 30% less calories than normal fries, and the latest ones are also around potato noodles and potato rice. This is about genetics. You can see we HZPC as a group focuses on almost all the spectrum with respect to the market gaps or market requirements, and also it's quite open and believes in collaboration. Hence, around 96% of the varieties developed by HZPC are in the public domain or given to universities and is for institutional research, so that the world may solve the food problems together. Talking about the varieties which are quite popular in Asia, I already mentioned in India we have Taurus for crisp, Columba for fresh, and Santana Innovator, and also Ivory Russet. These are the varieties which are currently commercialized in India, and then there's a list which is already popular in other parts of Asia. We already have around 40 varieties to secure the future in India, but as I mentioned, it takes a lot of time for us to kind of commercialize, bring a variety, test it and commercialize it. So you can see, because one of the concerns with French fry players is its total dependence on Santana. So what could be the replacement for Santana? We are already having one or two good varieties. Elverstone Russet is seeming promising, and then there are 3-4 another ones which are in different stages of R&D. So hopefully in the next 5 to 10 years we'll have a good solution and good spread of risk as far as the French fries in Gujarat are concerned. This is just one example. I'm happy to say that every last year itself, Columba has added more than 50 crores into the pockets of Gujarat farmers, because even for the last 3 years consistently it is having around 5 rupees a kg premium in the market versus the other varieties which the farmers grows for table. We saw it last year when the table potato prices were say 12, 13, 15 rupees. It was selling around 20 rupees. This year was not so promising year for most of the growers, but Columba was still maintaining its 5 rupees premium. And I visited Star Bazaar. I'm happy to say almost most of the potato sales Star Bazaar is doing in Ahmedabad, Mumbai and Pune. Columba has more than 90% market share. So in 2014 the joint venture was formed between Mahindra and HZPC, and we have set up a 5 acres mini tuber production facility. We produce on around 36 million mini tubers,
In India, we are producing seeds around 6,500 acres, working with around 900 farmers from Punjab, Haryana and Western UP, and those seeds we are supplying to throughout the India. We are also exporting a lot of mini tubers to Saudi, Egypt, Senegal, Ethiopia, and earlier we used to export quite a bunch to Russia. And the basic objective of this joint venture is to bring new varieties for our farmers and act as a differentiator in the market. So that's pretty much from my side. I've saved 1 minute. Thank you. Thank you, sir, for enhancing our knowledge on the subject and highlighting on key work areas of EdZPC. Thank you. And now further again, let's hear more from industry. Now to reflect upon topic linking farmers to markets, I now invite Mr. Hemant Gaur, Director, Siddhivinayak Agri, for the presentation. Sir. મારું ગુજરાતી આવડતું નથી તો मैं आई विल टॉक इन हिंदी. आई विल टेक दैट लिबर्टी. सो छावड़ा, आदरणीय छावड़ा साहब, मैं गुजरात गवर्नमेंट का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपना पक्ष रखने का, अपनी बात बोलने का. तो मैं जहाँ तक सिद्धिविनायक के बारे में बोलूँगा, हम लोग आलू के ऊपर काम करते हैं और आलू के सीड से लेके और फाइनल प्रोसेसिंग तक कहीं भी कोई भी हेल्प चाहिए तो उस पूरे स्पेक्ट्रम में हम काम करते हैं. क्योंकि हमारा एक मानना है, जब हमने काम चालू किया था तो पूरा इकोसिस्टम नहीं था. तो जब इकोसिस्टम नहीं होता है तो कई छोटी छोटी चीज़ों के कारण से आपका पूरा काम बिगड़ जाता है. तो हमारी कंपनी के बारे में सब मैं पहले बोलूँगा. मैं आलू में 2002 से काम करता हूँ, जब मैं पेप्सी में था. उसके बाद मैं आईटीसी में गया, फिर मैं वॉलमार्ट में गया और 2008 में मैंने सिद्धिविनायक को शुरुआत किया था. 2008 से आज 2025 तक की जो हमारी जर्नी है वो लिखी है. उसमें हमने सीड के लिए एग्रीको के साथ जॉइंट वेंचर किया, हमने मशीनरी के लिए काइपर्स के साथ जॉइंट वेंचर किया. ये दोनों डच कंपनी है, उनसे हमें बहुत सीखने को भी मिला. और उसके साथ साथ आज इन्हीं सब कारणों से, तो जहाँ से भी हमें टेक्नोलॉजी मिली हमने उसको अपने साथ लिया. आज हम करीब 150 लोग हैं जो इस कंपनी में काम करते हैं और हम पूरे इंडिया के अंदर आलू के ऊपर एक इकोसिस्टम बना रहे हैं जिससे कि हम कुछ अलग कर पाएँ. और उसके कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा. तो जैसा मैंने बताया कि हम सीड पे भी काम करते हैं. हम एक प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं जहाँ पे हम ना कि नई वैरायटियाँ आपको दें, बट उनको हम बेच भी पाएँ. उसके बाद में हम जहाँ पर प्रोसेसिंग की बात आती है तो शायद ही स्नैक्स की बड़ी कंपनियों में बहुत कम कंपनियाँ ऐसी होंगी जहाँ पर हमारी कोई ना कोई मशीन ना लगी होगी. इनफैक्ट आज की तारीख में प्रोसेसिंग के अंदर हमारा करीब 40% एक्सपोर्ट है. और हमने क्या पाया कि जो जो सॉल्यूशन हम इंडिया में बना रहे हैं वो सिर्फ इंडिया में ही एप्लीकेबल नहीं है, वो उतने ही एप्लीकेबल ईस्टर्न यूरोप में भी हैं, वो उतने एप्लीकेबल अफ्रीका में भी हैं, मिडिल ईस्ट में भी हैं, साउथ ईस्ट एशिया में भी हैं. तो जो हमने पहले काम चालू किया था इंडिया के लिए, आज हमें ये पता चला धीरे धीरे कि सिर्फ वेस्टर्न यूरोप और यूएस को छोड़ दीजिए, बाकी जगह पर जो वॉल्यूम है वो हमारे वॉल्यूम के साथ ही हैं. और जैसे हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है उनकी भी इंडस्ट्री बढ़ रही है और सॉल्यूशन उन्हीं को हमारे वाले ही चाहिए. तो हमारा ये फूड इंजीनियरिंग डिवीज़न है. हम बहुत बेसिक R&D पे काम करते हैं. हमारी कंपनी के पास 3 पेटेंट्स हैं आज की तारीख में, जो कि जिनको हम यूज़ करके आज की तारीख में मार्केट में जा पा रहे हैं. हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इसके साथ में हम एक नई ब्रांडेड आलू की लाइन लेके आए हैं जिसको हम सिग्नेचर ट्यूबर्स कहते हैं. अब मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में न जाके बात करूंगा कि हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं, जो क्या बदलाव हमारे मार्केट के अंदर आ रहे हैं. तो एक तो हमारा सब में बड़ा बदलाव जो आ रहा है, हमारा जो आलू खरीदने बेचने में बहुत बड़ा अंतर होने लगा है. हमको रोज़ रोज़ नहीं पता चलता, पर अगर हम 10 साल के अंतराल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 20 साल पहले या 30 साल पहले मेरे को मौका मिला था हिम्मतनगर में काम करने का. तो हिम्मतनगर में उस टाइम पर आलू नहीं होता था, उस टाइम कॉटन होती थी, जब मैं नागार्जुना फर्टिलाइज़र में पेस्टिसाइड बेचा करता था. तो वहाँ से अगर मैं देखूँ तो आज तो हिम्मतनगर बिल्कुल बदल गया. तो आप बीच बीच में नहीं देख सकते, पर आप बदलाव धीरे धीरे आता है, पर आ जाता है. तो एक बहुत बड़ा बदलाव होगा कि जो मार्केट
यार्ड के बाहर निकल जाएंगे आलू में। तो जो ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स आ गई है, ये पूरे मार्केट में किस तरह हम व्यापार करते हैं इसको बदल देने वाली है। तो एक तो ये बहुत बड़ा बदलाव हमारे सामने आ रहा है, और उसके साथ साथ आपकी रिक्वायरमेंट बहुत बदल जाने वाली है। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हमारी जो वैरायटी है लेवेंडर, उसमें मैं 12 दिन की शेल्फ लाइफ देता हूँ। आज अगर आप आलू लेते हैं और आप मार्केट में डालते हैं, उसको 3 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में स्प्राउटिंग चालू हो जाती है। अगर हम रिटेल के मार्केट की बात करें, अगर मैं 12 दिन की कर दूं तो उसके कितना सेविंग हो गया, ठीक है साहब। तो हमारे मार्केट में फिर आप उसको क्विक कॉमर्स में बेच सकते हैं, फिर आप उसको ई कॉमर्स में बेच सकते हैं। तो मार्केट बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जो ग्रोथ है क्विक कॉमर्स की, ई कॉमर्स की, वो 200% है, वो डबल होता जा रहा है सेल का मार्केट उसका। तो ये एक बदलाव हमें दिख रहा है। एक, अगर आप आलू अनफॉर्चुनेटली हेल्थ के खिलाफ माना जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं आलू, अगर हम कंपेयर करें गेहूं और चावल पे गवर्नमेंट कितना सब्सिडी देती है, तीसरी सब में बड़ी फसल आलू है, और आलू पे गवर्नमेंट 1 पैसा सब्सिडी नहीं देती, ना किसी को चाहिए, कोई मांगता है आलू पे सब्सिडी, ठीक है साहब। उसके बावजूद ये इसको हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अगर हम उसके अंदर ऐसी वैरायटियाँ ला पाएँ जिसमें हम हेल्थ के क्लेम बना पाएँ, तो हमें बहुत अच्छा एक प्रीमियम मार्केट में मिल सकता है। जैसे मैं सिप के बारे में बोलूँ, तो सिप ने अभी अभी एक वैरायटी लॉन्च की है जिसमें आयरन ज़्यादा है। तो वहाँ पर वो बहुत बड़े, उसमें जहाँ जहाँ बच्चों को आयरन की डेफिशिएंसी है, उसके लिए वो लोग वो वैरायटी को प्रमोट कर रहे हैं। या हम एक वैरायटी के ऊपर काम करते हैं जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। तो इस तरह से हम एक बदलाव, एक अलग चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो हमको बहुत मिलती है, और आजकल आप सब लोग एक्सपीरियंस भी करते हो, गर्मी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमको बहुत जल्दी ऐसी वैरायटियों की ज़रूरत पड़ेगी जो शॉर्ट ड्यूरेशन हो। क्योंकि अगर शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी हम नहीं ला पाएंगे तो हम को ये जो सक्सेस है इसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तीसरी बात जो हमको फ़ायदा कर गई है वो है कि विश्व में, स्पेशली यूरोप के अंदर, आलू का प्रोडक्शन कम हो रहा है, और आलू का प्रोडक्शन कम होने की अगले 10 साल में भी वही संभावना बनी रहने वाली है। इसका मतलब ये भी है कि हमारे देश में प्रोसेसिंग चलने वाली है, हरीश जी का काम बढ़िया चलने वाला है, आलू का एक्सपोर्ट चलता रहने वाला है। तो वो एक चीज़ हमारे लिए पॉजिटिव है, और हम उसके लिए जितने तैयार हो जाएंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, उतना ही हम उसको आगे ले जा पाएंगे। और लास्ट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि अभी अगर आप देखें तो आप आलू की फ्रेंच फ्राई और चिप्स की बातें करते हैं, मैं चाहूँगा कि हम उससे आगे बातें करने लगें, क्योंकि ये मार्केट के लिए तो हमने बहुत कुछ कर लिया है, पर इसके आगे क्या? क्योंकि ये मार्केट में, स्पेशली फ्रेंच फ्राई में, आप विश्व के बाज़ार के साथ जुड़ जाते हो। अगर विश्व के बाज़ार में मंदी आ गई तो आपकी भी मंदी आ गई। क्या आप ऐसा जुड़ना चाहेंगे? तो नहीं जुड़ना चाहेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मार्केट्स को, बहुत ज्योग्राफी और प्रोडक्ट दोनों को हम जितना डाइवर्सिफाई कर पाएँ, उतना ज़्यादा हम अपनी आगे की प्रॉब्लम्स के लिए तैयार हो पाएंगे। तो मेरा समय पहला तो आप सभी लोग, आप सब बिजनेसमैन हैं, किसान भी हैं, मेरा समय पहला तो आह्वान यही होगा कि इन प्रॉब्लम को सॉल्व देखें, और एक एक प्रॉब्लम उठा के अगर हम सॉल्व करने लग जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिसमें सरकार का भी वो चाहिए, जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का एक बहुत अच्छा मतलब मुझे वो लगा, तो जब मैं नीदरलैंड में था एग्रीको में, तो हमारे कुछ साथी आए हुए थे गुजरात से, तो मुझे लगा कि एक बहुत अच्छी पहल है वो, क्योंकि जहाँ पर बहुत देशों के अंदर आपको नई वैरायटी इंट्रोड्यूस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यहाँ पर आप हम आराम से नई वैरायटी ला के, ट्राई करके, और वो भी गवर्नमेंट के साथ में कोलैबोरेटिवली कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों का है। तो जैसा मैंने बताया था कि जैसे इंडिया में 101 मिलियन लोग जो है डायबिटिक हैं, इसके लिए हमारे पास एक वैरायटी है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 52 है। आज हम इसको करिश्मा के नाम से पैक करके मार्केट में 10 रुपये सब तरह के आलू के ऊपर बेचते हैं, और वो बिक रहा है। इनफैक्ट इस हद तक बिक रहा है कि मेरे पास आज कोई आलू नहीं है बेचने के लिए, और लोग मुझको मेल लिख रहे हैं कि मैं डायबिटिक हूँ, मुझे आलू खाना है। ठीक है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई कॉमर्स, ई कॉमर्स जिसमें वो अवेलेबल ना हो। तो 4-5 शहरों में ही मैं बेच पाया। इस साल मैं उसका वॉल्यूम करीब 3 गुना कर रहा हूँ, और ये भी मैं बता दूँ कि वो आपके गुजरात में ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब एरिया हम बहुत कुछ कर सकते हैं जुड़ के, साथ में मिल के। तो क्या क्या करना है? मार्केट लेड और क्लाइमेट चेंज के आधार पे हमें वैरायटियों को सेलेक्ट करना है। जैसे अगर आप देखें तो आलू के लिए संटाना में
फ्रेंच फ्राई में और एलआर, आपका पूरा बिजनेस सिर्फ 2 वैरायटी के ऊपर टिका हुआ है। आज बहुत ज़रूरी है कि हम ये वैरायटियों के आगे निकल पाएँ। अगर इन वैरायटियों में कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो आपका सारा मार्केट ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि हम सबको कुछ ना कुछ नया ज़रूर ट्राई करना है, रास्ते तो ज़रूर निकलेंगे। आप ही लोगों ने नई वैरायटी ट्राई की, आपने ट्राई किया एलआर आ गया, आपने ट्राई किया संटाना आ गया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग और नई वैरायटी भी ला पाओगे। और कुछ भी नहीं, महिंद्रा के पास, हमारे पास, टेक्निको के पास, सब इंडस्ट्री के पास कुछ भी नहीं है तो 5-5, 6-6 वैरायटियाँ और हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। मेरा आपसे यही आह्वान होगा कि आप सब अपने लेवल पे 1-1, 2-2 वैरायटी भी ट्राई करेंगे तो रास्ते तो निकल आएंगे। तो ये जो हमारा पूरा कंसंट्रेशन है कुछ वैरायटी के ऊपर, वो कम हो जाएगा। दूसरी बात, ये बात ध्यान रखिए कि प्रोसेसिंग बहुत महत्वपूर्ण है और प्रोसेसिंग से सक्सेस आई है, पर इंडिया आज भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में राशन में ही आलू खाता है, टेबल में ही आलू खाता है, किचन में खाता है, तो वो मार्केट को हम छोड़ नहीं सकते। अगर हम आलू की बात कर रहे हैं तो हमें उसकी बात भी करनी होगी, और वो हमारे को एक महत्वपूर्ण, एक अलग से एक ऑप्शन बनाए रखता है। दूसरा जो है कि हमने एक और आपकी जो सक्सेस आई, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। एलआर जो है वो गुजरात का एलआर के मुकाबले एमपी के एलआर का 1% सॉलिड ज़्यादा होता है, पर गुजरात के सॉलिड को 50 पैसे ज़्यादा मिलता है रेट। वो इसलिए मिलता है क्योंकि आप अच्छा ग्रेडिंग कर पाए। जो ग्रेडिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गुजरात में कहीं पहले आ गया इंदौर के, और इस कारण से इंडस्ट्री ने आपको प्रीमियम देना चालू कर दिया, और ये हो गया कि गुजरात का एलआर बहुत अच्छा है। तो गुजरात के एलआर से टेक्निकली अगर आप प्रोसेसिंग क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो इंदौर का अच्छा है, पर वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर आ पाया वो नहीं आया। जो आपकी कोल्ड स्टोर टेक्नोलॉजी आप लोग लेके आए वो लोग नहीं लेके आ पाए। तो ये एक बहुत बड़ा आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है, और मेरा एक मानना है कि इसको और आगे और अच्छा बनाने की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको बताऊं, जो आप कोल्ड स्टोर के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, शायद उसमें और बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें लेबर आज मिल जाती है वो शायद लेबर 10 साल बाद नहीं मिल पाएगी। जिस तरह हम आज, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने करिश्मा आलू का ही एग्जांपल देता हूँ। मैं 37.5 रुपये किलो बेचता हूँ उसको, 37.5 रुपये। हमने एक बार आलू पटक दिया, 1 किलो आलू उसमें ख़राब हो जाता है, 37.5 रुपये हो गया। अगर ऐसा ही उसने 40 बार आलू ले जाके पटक दिया, मेरा आलू ख़त्म हो जाता है। ठीक है साहब, अब किसान के खेत से और कस्टमर के पास जाने तक, पैक होने तक, वो 8 बार पटका जाता है। ठीक है, तो अब उसके लिए हमें अलग तरह से हैंडलिंग करने की ज़रूरत है, उसको अलग तरह से स्टोर करने की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे आलू महंगा होता जाएगा, हमारे सारे प्रोसेसेस बदलते चले जाएंगे, और बाद में आपके यहाँ पर जो प्रोसेसिंग की कैपेसिटी है वो तो ड्रामेटिकली बढ़ी ही है, और वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपको कभी भी मार्केट को सही से इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर देती है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मेरा मानना है कि हमको आगे के लिए, भविष्य के लिए तैयार कर देती हैं। हम क्या काम कर रहे हैं? हम वैरायटी डाइवर्सिफिकेशन पे काम कर रहे हैं। हम आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन, हम करीब 2 वैरायटी फ्रेंच फ्राई में, 2 वैरायटी चिप्स में, करीब 3 वैरायटी राशन के अंदर हम ऑफ़र कर रहे हैं। और हम थोड़ा लेट चालू हुए थे तो हमारे पास अभी ऑप्शन अभी आने चालू हुए, पर आने वाले टाइम में आपको और ऑप्शन ये मजबूती से दिखाई पड़ने लगेंगे। दूसरा, हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी के ऊपर, नए प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे एक वैक्यूम फ्राइड फ्रेंच फ्राई की बात होती है, ये एक प्रोडक्ट होता है, वैक्यूम फ्राइड प्रोडक्ट होता है आलू का, जो कैलेबी के नाम से आप जानते हैं। उसकी टेक्नोलॉजी हम इंडिया में पहली बार लेके आ रहे हैं। अगर आप जापान जाएंगे, कोरिया जाएंगे तो बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है। तो क्या हम और क्या प्रोडक्ट ला सकते हैं? फ्रेंच फ्राई हो गया, चिप्स हो गया, अगला क्या? तो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तीसरी बात है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना हम उस तरह से बना पाएँ। जैसे मैंने आपको अब बताया था कि करिश्मा में हम हैंडलिंग करते करते ही गुजर जाते हैं, हमारा इतना नुकसान हो जाता है, उसके ऊपर काम होगा। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, ऑर्गेनिक, आपकी स्टेट तो ऑर्गेनिक के लिए इतना मजबूत है, आगे बढ़ गई है। ऑर्गेनिक पोटैटो के लिए कभी भी आज कस्टमर प्रीमियम दे रहा है। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि और हम क्या क्या प्रोडक्ट ला सकते हैं जो हेल्दी सेगमेंट में या और अलग सेगमेंट में होंगे। और तीसरा, जहाँ हम काम कर रहे हैं उसकी ज्योग्राफी, कि भाई कितने हम और कंट्रीज़ में हम माल अपना भिजवा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, फ़िलीपींस, हमारा आलू फ़िलीपींस नहीं जाता है, हमारा आलू थाईलैंड नहीं जाता है। तो हमारे अपीडा वाले साहब थे, तो मैं कहने ही वाला था, मैं उनको बाद में, हम काफ़ी बार लिखते भी रहते हैं कि क्या हम नए देश खोल सकते हैं,
क्योंकि मुझे ये मालूम है कि फिलीपींस में 40 रुपए किलो का आलू बिकता है। अब पर हमारा आलू तो भाई 40 रुपये से 30 में भी चला जाए, पर हमारा आलू जब तक हमारे प्रोटोकॉल सेट नहीं होगा नहीं जाएगा। तो वहाँ पर गवर्नमेंट की बात आती है कि हम उसको एक्सपोर्ट कर पाएँ। ठीक है साहब, तो ये जो है ये हम करते हैं, ये हमारा नंबर है, आप कभी भी हमारे साथ टच में आ सकते हैं। हम आप ही के बीच में घूमते रहते हैं, कहीं अलग से नहीं आए हैं, बिल्कुल देसी कंपनी है, स्टार्टअप हैं, जिसके लिए इंडिया मोदी जी हमारे कहते हैं स्टार्टअप करो, हम वही स्टार्टअप करते हैं और R&D फोकस्ड स्टार्टअप किए हैं। ठीक है साहब, धन्यवाद। आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन, सुझाव और विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we have with us today Mr. Haresh Karamchandani, a visionary founder of Hyphen Foods, Managing Director and Group CEO. Hyphen Foods has transformed the frozen food industry in India and contributes in enabling the shift for India from a net importer to a net exporter. We invite Mr. Haresh Karamchandani to share his experience and guide us on the subject scaling processed potato products through his presentation. Sir. So good evening everyone. Good evening my friends, members of the dais. I'm very happy to be here. जैसे हमारे फ्रेंड ने इंग्लिश में बातचीत की, फिर हेमंत जी ने हिंदी में की, तो मैंने सोचा डाइवर्सिटी लाने के लिए मैं गुजराती में भी बात कर सकता हूँ। वो इसीलिए क्योंकि आज आप सबके बीच यहाँ उपस्थित होके ये अपॉर्चुनिटी पाकर काफ़ी खुश हूँ मैं, लेकिन साथ साथ में क्योंकि ये जो मैंने डिसाइड किया मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ हिंदी में, ताकि सब लोगों का बेनिफिट हो, सब लोग और अच्छे से समझ पाएँ। तो आज यहाँ आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर काफ़ी खुशी महसूस हो रही है, खास करके इसीलिए क्योंकि ये जो वाइब्रेंट गुजरात का रीजनल कॉन्फ्रेंस है वो इस बार हो रहा है मेरे अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, अपने होम टाउन के पास। मैं ओरिजिनली महसाना को बिलोंग करता हूँ और यहीं से मैंने अपने एंटरप्रेन्योरल जर्नी की शुरुआत की और यहीं पे अपना जो है अपनी जन्मभूमि को कर्मभूमि बनाई है और यहीं पे मैंने अपना वैल्यू एडिशन के माध्यम से पोटैटो प्रोसेसिंग यूनिट लगाया है। थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ हाइफन फूड्स को। सो बेसिकली हम लोग पोटैटो से फ्रोज़न पोटैटो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ और फ्रोज़न पोटैटो स्पेशलिटीज़ जैसे आलू टिक्की, बर्गर पैटीज़, हैश ब्राउन्स, नगेट्स वगैरह। और अब हम डिहाइड्रेटेड पोटैटो प्रोडक्ट जो पोटैटो फ्लेक्स है वो भी बना रहे हैं, और ख़ास करके इंडिया मार्केट के लिए, क्योंकि हमारे इंडियन कंज्यूमर्स को वैरायटी चाहिए रहती है फूड में, तो हम लोग पोटैटो के अलावा भी बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं। सो अब मैंने सिर्फ 2 स्लाइड्स अपनी रेडी करी हैं इस प्रेजेंटेशन के लिए। तो पहले मैं अपनी बात करूँगा हमारी अपनी जर्नी के बारे में, हमारी अपनी जो स्टोरी है। सो बेसिकली जैसा मैंने बताया, महसाना से ही हमारी शुरुआत हुई और हमारा जो ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस है वो 60 इयर्स से पोटैटो ट्रेडिंग में हम लोग उससे ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं फैमिली बिजनेस में 3rd जनरेशन, मैंने भी अपने एंटरप्रेन्योरल जर्नी की शुरुआत पोटैटो ट्रेडिंग से ही करी और करीब 10-11 साल पोटैटो ट्रेडिंग में काम करने के बाद मुझे जो पोटैटो प्रोसेसिंग में जो अपॉर्चुनिटी नज़र आई तो उसको मैंने परस्यू किया। और वैसे ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा, बहुत ही बोल्ड स्टेप था, लेकिन उस स्टेप को लेने के लिए कुछ जो की लीवर्स मैंने देखे, उसमें से एक था कि क्योंकि हमारा जो नॉर्थ गुजरात है वो प्रोसेसिंग वैरायटी ऑफ पोटैटो में तेज़ी से उभर रहा था। वैसे गुजरात जो है इंडिया में नंबर 4 पोजीशन पर है पोटैटो प्रोडक्शन के। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है करीब 32%, उसके बाद बंगाल, बिहार और उसके बाद गुजरात जो है सिर्फ 7.5% पे है। लेकिन प्रोसेसिंग वैरायटीज़ की दृष्टि से देखें तो गुजरात लीडर है कल्टीवेशन में। सो एक वो स्ट्रेंथ देखा मैंने, और हम लोग इस रीजन से बिलोंग कर रहे थे। और दूसरा, फ्रोज़न पोटैटो प्रोडक्ट्स का जो मार्केट है ग्लोबली वो काफ़ी बड़ा है, जो वॉल्यूम है, जो कंजम्पशन है, ख़ास करके यूरोप में, यूएस में, वो बहुत बड़ा है। और जिस तरह से यूरोप और यूएस के जो प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ के जो ट्रेंड्स हैं, वो इवेंचुअली इंडिया में भी वो ट्रेंड्स फॉलो करते हैं।
तो वो देख के, क्योंकि इंडिया में भी ये बड़ा मार्केट बनेगा, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये बोल्ड स्टेप लिया और करीब 5 साल लगे। 2010 में कॉन्सेप्चुलाइज किया आइफन फूड्स को और 5 साल हमने लगाए अपना रिसर्च फेज जिसको कह सकते हैं, काफ़ी निटी-ग्रिटी समझने की कोशिश की इस इंडस्ट्री के बारे में। कई बार मैंने यूरोप ट्रैवल किया, स्पेशली नेदरलैंड्स की मैं यहाँ बात करूँगा कि नेदरलैंड्स एक हब है पोटैटो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, पोटैटो कल्टीवेशन का। सबसे ज़्यादा जो यील्ड है जो फार्मर्स को मिलती है वहीं पे आ रही है। पोटैटो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, पोटैटो प्रोसेसिंग इक्विपमेंट जो है वो मैक्सिमम नेदरलैंड्स की कंपनीज़ हैं। पोटैटो ब्रीडर्स हमारे कुछ फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर है महिंद्रा HZPC, सो HZPC एक नेदरलैंड्स बेस्ड ब्रीडिंग कंपनी है। SV एग्री भी जो जिन ब्रीडिंग कंपनीज़ के टाई अप कर रहे हैं उनका भी जो ताल्लुक है नेदरलैंड्स के साथ है। सो काफ़ी कुछ मुझे नेदरलैंड से भी सीखने को मिला। सो वो 5 साल जो है साथ साथ में सीड पाइपलाइन डेवलप करने में भी हमने लगाए और फाइनली 2015 में, दिसंबर 2015 में अपना जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो शुरू किया। तो सबसे पहले हमने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए फूड सर्विस सेगमेंट में, डिस्ट्रीब्यूटर्स बना के, और होरेका में हमने अपना सप्लाई करना शुरू किया। और अगले ही साल बड़ी खुशी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा कि पहला हमें जो ब्रेक थ्रू मिला QSR सेगमेंट में, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में, वहाँ पर भी काफ़ी कंजम्पशन होता है फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ का, तो बर्गर किंग इंडिया में हमने सप्लाई करना शुरू किया। लेकिन सबसे हमारी जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो एक्सपोर्ट्स की रही। जनवरी 2017 में जो हमने एक्सपोर्ट में एक्सप्लोर करना शुरू किया, एक्सपोर्ट की जो इंक्वायरीज़ हमने लेना शुरू किया और पहला कंसाइनमेंट हमने थाईलैंड भेजा, तो वहाँ से शुरू हुई है एक्चुअली इंडिया के लिए, मैं कहूँगा ना सिर्फ हाइफन के लिए बट इंडिया के लिए जर्नी, कि जो टर्न अराउंड एक तरह से हम ला पाए हैं जिसकी बात हो रही थी। 1990 से इंडिया फ्रेंच फ्राइज़ इंपोर्ट कर रहा था और 2007 से जैसे यहाँ पर लोकल प्रोडक्शन शुरू हुआ तो ग्रेजुअली इंपोर्ट्स कम होते गए, लेकिन फिर भी इंपोर्ट्स 2012 तक चल रहे थे। तो हमारी कंपनी के आने के बाद जो ये टर्न अराउंड हुआ है, तो बड़ा गर्व के साथ मैं कहता हूँ कि हम लोग इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं। ये डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी जो इंडिया के लिए ओपन अप हुई है, उससे ना सिर्फ इंडिया के लिए एक्सपोर्ट अर्निंग्स हो रही है बट यहाँ के फार्मर्स को भी काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। जितना ज़्यादा हम लोग प्रोसेस करेंगे पोटैटो, उतना फार्मर्स के लिए अश्योर्ड इनकम भी हम लोग ला पा रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड जो इंडिया के लिए रहा और साथ साथ में हमारे लिए जिसकी वजह से हमने स्केल अप किया, तो वो थैंक्स टू एक्सपोर्ट्स है। हमारे बिजनेस का करीब 70% शेयर एक्सपोर्ट से आ रहा है। सो उसके चलते हमने और फर्दर ग्रोथ किया, एक्सपेंशन किए, नई फैक्ट्रीज़ लगाई और उसके चलते 2021 में हम इंडस्ट्री लीडर्स भी बने। तो हम लोगों ने जो है लार्जेस्ट वॉल्यूम हम प्रोसेस कर रहे हैं और जैसा मैंने बताया हम लोग पायनियर्स रहे हैं इंडिया से एक्सपोर्ट करने में। और इंडिया से जो प्रोसेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान पोटैटो बेस्ड प्रोडक्ट्स का रहा है। और अब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं स्केल में। हमने जनवरी 2024 में वाइब्रेंट गुजरात के दरमियान स्टेट गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट MOU किया है करीब 1100 करोड़ का और उसको हम अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और 2 प्रोजेक्ट्स हमारे, 2 प्रोसेसिंग लाइन्स हमारी लग चुकी हैं और एक बड़ा जो लाइन है वो इस साल हमारा लग रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और अगले साल तक हमारा जो लाइन शुरू होने के बाद हमारा पोटैटो प्रोसेसिंग का वॉल्यूम जैसे बढ़ता है उतना ही हम जो हमारा फार्मर बेस है, जो आज हम शुरू में इन 10 सालों में हमने स्टार्टिंग में 200 फार्मर्स के साथ शुरुआत की और आज हम 7,500 फार्मर्स के साथ जुड़े हैं। ये संख्या जो है 20,000 तक जाने की उम्मीद है ये नए प्रोसेसिंग प्लांट शुरू होने के साथ साथ। तो अब जो ये हमारा इन्वेस्टमेंट है स्केल में, वो हमें और एक ग्लोबल स्टेज पे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस देगा और हमें मदद करेगा ग्लोबल चैम्पियन बनने के लिए। और खुशी के साथ मैं बता रहा हूँ कि हमारा यहाँ पे मेनली जो नॉर्थ गुजरात से हम लोग सोर्स कर रहे हैं पोटैटो, उसमें वैल्यू एडिशन करके सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे लगती है अपने बिजनेस के साथ जो हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। आज 40 से ज़्यादा देशों में हमारा प्रोडक्ट जा रहा है और ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को हम मैच कर पा रहे हैं और इसीलिए एक्सेप्टेंस हो रहा है इंडिया का इस कैटेगरी में। तो बड़ी खुशी होती है आपके साथ शेयर करते हुए ये। अब ये जो हमारा ओवरऑल सक्सेस जिसको कहेंगे इस बिज़नेस में रहा है, इन 10 इयर्स में हमने जो ग्रोथ देखी है, उसका एक मुख्य कारण है कि जो हमारा एक इंटीग्रेटेड सीड टू शेल्फ बिजनेस मॉडल है। अब ये जो सीड टू शेल्फ बिजनेस मॉडल है उसके 5 फैसेट्स हैं। सबसे पहला जो है सीड मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम। हम अपना सीड मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम चलाते हैं। हालांकि इसके लिए जो है मिनी ट्यूबर्स हैं, जो जनरेशन 0 ऑफ सीड पोटैटो है, वो हम सीड कंपनीज से लेते हैं और उनके साथ भी सीड प्रोग्राम हम चला रहे हैं।
लेकिन साथ साथ में हम अपना सीड प्रोग्राम भी चला रहे हैं ताकि हम जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर्स हैं जो कमर्शियल क्रॉप लगाते हैं उनके लिए अच्छे से अच्छी क्वालिटी उपलब्ध करा सके। सो आज हमारे साथ करीब 1000 से ज़्यादा फार्मर्स पंजाब और हिमाचल में जुड़े हैं, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में भी अब हम कुछ पॉकेट्स में सीड मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। और जो मेजरली हमारा जो प्रोक्योरमेंट है कमर्शियल क्रॉप का वो हम गुजरात से कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया पहले साल में 200 फार्मर्स के द्वारा हमने 10,000 टन का प्रोक्योरमेंट किया और पिछले सीज़न में करीब 4 लाख टन का हमने प्रोक्योरमेंट किया है, जिसके अंदर हमारे साथ 7,500 फार्मर्स जुड़े थे। तो हर साल जो फार्मर्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं उसका मुख्य कारण है कि फार्मर्स को भी ये जो मॉडल है हमारा जो सीड दे के हम लोग बायबैक कर रहे हैं उससे उनको अशोर्ड इनकम अवेलेबल हो रही है। और साथ ही साथ पिछले कुछ 3-4 सालों में हमने कुछ हमारे जो वॉल्यूम्स है हम एडिशनल सोर्स की तरह मध्य प्रदेश को भी देख रहे हैं, तो करीब 5% हमारे वॉल्यूम्स मध्य प्रदेश में भी होने लगे हैं। और हम लोग फार्मर्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो एक्स फार्म ही हम लोग उनका मटेरियल लिफ्ट कर देते हैं और कोल्ड स्टोरेजेस में जो रखने का जो सारा प्रबंध है वो कंपनी ही करती है, यानी फार्मर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है कोल्ड स्टोर में आलू को रखना और उसकी संभाल करना, तो वो भी हम लोग ही अपना कर रहे हैं। और जिसके चलते हम लोग काफ़ी हाईटेक कोल्ड स्टोरेजेस, यहाँ कोल्ड स्टोरेजेस में भी कई यूरोपियन कंपनीज़ हैं, डच कंपनीज़ हैं जिनकी टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से जो हमारे शॉर्ट टर्म और मिड टर्म स्टोरेज है जो 3 से 6 महीने तक हम आलू रखते हैं उसमें जो हमारे कन्वेंशनल कोल्ड स्टोरेजेस हैं उनको यूज़ करते हैं और उसमें भी एडिशनल मॉडर्नाइजेशन हमने कराया हुआ है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज हम करते हैं जो बल्क स्टोरेज, उसमें जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो खास करके यूरोपियन टेक्नोलॉजी को हमने उन स्टोरेजेस में इंस्टॉल करवाया है, जिसकी वजह से हम एक्सटेंडेड टाइम तक अच्छी क्वालिटी को मेंटेन कर पाते हैं आलू के अंदर। सो करीब 100 से ज़्यादा कोल्ड स्टोरेजेस हमारी कंपनी यूटिलाइज कर रही है गुजरात में। फिर जो चौथा फैसेट है हमारे सीड टू शेल्फ मॉडल का वो है हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसेसिंग प्लांट। यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। जो प्रोसेसिंग लाइंस है वो फुली ऑटोमेटिक है और मेजर जो इक्विपमेंट है प्रोसेसिंग लाइन का वो यूरोपियन है, नेदरलैंड से है मेनली। और अब तक हम जो हमारे कुल मिला के 6 प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, यहाँ हम 800 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं गुजरात में। और उसके अलावा अब जो अभी फ़िलहाल हमारा इन्वेस्टमेंट चल रहा है अनदर 1000 करोड़ हम लोग करने जा रहे हैं इस साल। और फाइनली जो लास्ट लेग है लास्ट माइल डिलीवरी, जो हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स बना रखे हैं उनके अपने कोल्ड रूम तक या फिर रिटेलर्स के शेल्फ तक भी हम लोग अपना डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी लॉजिस्टिक्स भी हम लोग इंडिया मार्केट के लिए खुद ही करते हैं। और जहां हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट्स में हम लोग कस्टमर पोर्ट तक जो हमारे प्रोडक्ट्स है उसको पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो इस तरह से ये पूरा एक इंटीग्रेटेड सीड टू शेल्फ बिजनेस मॉडल हमारा बन जाता है। और सारे जो इसके अंदर जो फैसेट्स हैं उन सबको हम टच करके और इसको एक तरह से जो पूरी तरह से मैं कहूँगा कह सकते हैं कि पूरी पोटैटो वैल्यू चेन में हम लोग अपने आप को प्रेजेंट रख रहे हैं। और इसी तरह से जैसे इंडिया ओवरऑल सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पोटैटो का, लेकिन अगर देखें तो जैसा हेमंत जी ने बताया मैक्सिमम जो है 92% प्रोडक्शन जो इंडिया में हो रहा है वो टेबल वैरायटीज़ में हो रहा है। और उसके लिए जो प्रोडक्शन है वो भरपूर है, जितना हमारे देश में कंजम्पशन है उतना वो पूरा हो पा रहा है। अब ज़रूरत है जो एडिशनल हमें प्रोडक्शन करना है वो प्रोसेसिंग वैरायटीज़ में हो, क्योंकि प्रोसेसिंग के द्वारा वैल्यू एडिशन करके हम लोग इंडिया का जो आलू है वो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। सो जो ग्रोथ है वो प्रोसेसिंग सेक्टर में हम लोग देख ही रहे हैं पिछले कुछ सालों से आ रही है, स्पेशली ये जो लास्ट 1-1.5 डेकेड से। तो वो ग्रोथ बरकरार बनी रहे उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम सही टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करें। गवर्नमेंट्स का हमारे लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और गवर्नमेंट के जो इंसेंटिव्स हैं और जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है अब तक अच्छा बना आया है वो बना रहे। और जैसा हमारे मित्र देवेंद्र जी ने बात कही कि जो नई वैरायटीज़ है वो भी लाने की ज़रूरत है, तो महिंद्रा HZPC जैसी कंपनियां जो वैरायटीज़ लाने का काम कर रही हैं वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप होगा इस इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि ओवरऑल जो पेशेंस की हम बात कर रहे हैं पोटैटो में, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि पोटैटो में काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत है, लेकिन
जिस तेज़ी से हमने अपना ग्रोथ किया है और जिस तरह से हमें ग्रोथ और आगे करना है, और ख़ास करके हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका जो उन्होंने हमें जो गोल दिया है, एक विजन दिखाया है विकसित भारत का 2047 तक, तो उसमें सिर्फ 20-22 साल रह गए हैं। तो हमें तेज़ी से उस तरफ बढ़ना है। उसके लिए ज़रूरत है कि किस तरह ये अच्छे से अच्छी वैरायटीज़ जो है, ऑल्टरनेट वैरायटीज़ हो या और बेटर वैरायटीज़ हो जिसमें फार्मर्स को भी अच्छा यील्ड मिले, और हमारे देश का जो पोटैटो प्रोडक्ट है वो 40 की जगह हमारा जो अपना गोल है कि 100 कंट्रीज़ तक हम पहुंचा पाएँ, तो उसमें हम भी काम कर रहे हैं। और इस तरह की जो सहयोगी कंपनीज़ हैं, जो लोग ब्रीडिंग में है, कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी में है और प्रोसेसिंग इक्विपमेंट में, उन सब का भी सपोर्ट इसमें लगेगा। सो इसी के साथ मैं अपनी बात कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात की इसी उद्यमिता के साफल्य से विकसित गुजरात से विकसित भारत की दिशा में हम अग्रसर हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब to sum up the session and to highlight on key takeaway points, इस सेशन के उन मुख्य बिंदुओं जिन्हें लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं उन पर प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री CM पटेल, जॉइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। Good evening, Namaskar. We have discussed about the entire value chain of the potato, and we find out that within 10-15 years we have developed or created very strong network right from seed to the market and export. I will talk in Hindi and English also, both language, because we have very good farmers with us. આપણે આ સક્સેસ સ્ટોરી ઊભી કરી છે એની અંદર ખેડૂત, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને સરકારની પોલિસીનો એક સરખો હાથ રહ્યો છે. સાથે સાથે એ પણ કહીશ કે ગુજરાતના ખેડૂત છે એને કોઈ પણ એક ક્લ્યુઝ આપવામાં આવે તો એ પકડીને એના ઉપર ડેવલપ થાય છે. એટલે આઈ એમ વેરી મચ થેન્કફુલ ટુ અવર ફાર્મર્સ ફોર ધ એન્ટાયર ગ્રોથ સ્ટોરી of the potato, because potato cultivation started in Gujarat in a riverbed area, and it was not a proper crop for the farmers. But over the years, and because of the business instinct of the farmers, it has been developed as a very good crop, and nowadays the Gujarat is fetching foreign investment and even foreign currency out of the potato. There are so many cultivation models available in the country, but I can say मैं ये कह सकता हूँ कि गुजरात के फार्मर्स की वजह से यहाँ हम विन विन सिचुएशन में है. और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो सक्सेस स्टोरी है, सक्सेसफुल मॉडल है, वो हमने पोटैटो में क्रिएट किया है. उससे जो इंडस्ट्रीज़ के जो लोग हैं, इंडस्ट्रीज़ के जो पार्टनर्स है और फार्मर्स का जो एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस है, उसकी वजह से ये हो रहा है. और हम ग्रोथ करेंगे, तब तक ग्रोथ करेंगे जब तक ये कॉन्फिडेंस बना रहेगा. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है वो फार्मर्स एंड इंडस्ट्री बोथ के लिए सपोर्ट कर रही है. वी हैव वेरी गुड कोल्ड चेन पॉलिसी, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव ऑल्सो देयर ओन पॉलिसी फॉर कोल्ड चेन. सो वी आर सपोर्टिंग मेनली फॉर द प्रोडक्शन, seed production, and the storage, rest of the processing industries taking benefit from the Ministry of Food Processing. I am very much thankful to the distinguished guest for delivering the nice insights and their thoughts. I hope their experience, इन लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो हमें बहुत काम लगेगा. और लॉन्ग रन में जाने के लिए हम ये इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट और फार्मर्स का जो गठबंधन है वो सही मायने में हम स्ट्रेंथन करते रहेंगे. तो डेफिनेटली हमारा जो ग्रोथ है पोटैटो इंडस्ट्रीज़ के लिए वो बढ़ेगा. हमें 4 चीज़ पे एक काम करना है, वो हमारी अभी लैक्यूना हम नहीं बोल सकते, इट्स अ मिसिंग लिंक. तो सीड प्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सीड, इसके लिए हम यहाँ गुजरात में नीदरलैंड के कोलैबोरेशन के साथ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस डेवलप कर रहे हैं, वो हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया. उसके साथ साथ अब पोटैटो इज़ नॉट रिमेन द वेजिटेबल्स इज बिकेम स्टेपल फूड. तो पोटैटो स्टेपल फूड बना है, इसीलिए हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है
जो हेल्थ कॉन्शियसनेस के लिए कि उसमें कुछ न्यूट्रिशन हो, न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड हो, और हमारे जो भविष्य की जो हमारा लक्ष्य है कि हेल्दी नेशन, तो उसमें भी पोटैटो का कुछ कंट्रीब्यूशन रहे। तो ये पोटैटो की सक्सेस स्टोरी को मैं करता हूँ, और सभी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गेस्ट है, मिस्टर साइमन हैक, डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, आई वेरी मच थैंकफुल टू यू। मिस्टर देवेंद्र सिंह, CEO महिंद्रा, उन्होंने हमें गुजरात में बहुत सारे वेराइटीज़ दिए हैं, उसके वजह से फार्मर्स ने ग्रोथ किया है, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू मिस्टर हेमंत गौर, डायरेक्टर सिद्धि विनायक, फॉर देयर फॉर support of entire value chain in the potato segment. I also thankful to Mr. Haresh Karamchandani. They have empowered our farmers and farmers को एक confidence बना हुआ है उनकी वजह से कि हम प्रोडक्शन करेंगे, हमारी इंडस्ट्री जो है वो परचेस करेगी और हम विदेश में भी भेज सकते हैं और भविष्य की जो नीड है वो भी हम कैटर कर सकते हैं। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माय डायरेक्टर मिस्टर HM चावड़ा, उनकी जो इंसाइट में ये सेमिनार हमने किया गया है और उनका हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। आई एम थैंकफुल टू द ऑडियंस, फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस सेक्टर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। और अंत में हमारे सभी महानुभावगण को एक मोमेंटो प्रस्तुत कर हम अपना भाव और कृतज्ञता प्रस्तुत करेंगे। I would request Shri Falgun Moore, Joint Director Horticulture, to present a memento to Mr. Simon Haig, Director General, International Potato Center. Thank you, sir, for your valuable presence here today. I request Shri B.J. Patel, Joint Director Agriculture, to present a memento to Mr. Hemant Gaur, Director Siddhivinayak Agri. I request Shri D.M. Patel, Deputy Director Horticulture, to present a memento to Mr. Devinder Singh Dosanjh. अनुरोध करते हैं श्री HM बाबरिया, डेप्यूटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से श्री HM चावड़ा, डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर, को मोमेंटो प्रेजेंट करें। May I now request Shri J.M. Varmora, Deputy Director Agriculture, to present a memento to Mr. Haresh Karamchandani, Director Hafen Foods. And I request Shri B.J. Patel, Joint Director Agriculture, to present a memento to Shri C.M. Patel, Executive Director Gujarat Prakritik Krishi Vikas Board. So thank you once again. Thank Honorable Dais and all of you, all the participants, for being here today, and I hope कि हमने बहुत अच्छे विचार साझा किए हैं और बहुत सारा मार्गदर्शन हमें मिला है महानुभावगण से। Once again, thank you all. Thank you.